தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் மேனிஃபெஸ்டோல 5 ரூபா பெட்ரோல்ல நாங்க குறைப்போம், எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு அரசமைச்சா 5 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டீசல்ல 4 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தவிர Sir, I am continuing, sir. I am continuing, sir. Sir, I am not allowed to talk. I don't want interruptions. State government, அதே மாதிரி 100 ரூபா எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு சப்சிடி மானியம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. சார் கொஞ்சம் அதே சமயம் சார் இது ரெண்டும் நடந்துருச்சு. சார் I can't shout sir, I'm very weak. அவங்க பேசும்போது நான் கேட்கணும், அவங்க பேசுற ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கணும். ஆனா பதில் கொடுக்க வந்த போது தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல, தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல. நான் கொடுக்கிற பதில கேட்டுதான் ஆகணும். நீங்க சொன்னதுல நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும். Thank you. இன்னும் கேட்டு போங்க. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, what is this, sir? எங்க மத்திய அரசு குறைச்சிட்டாங்க வரிய, நீங்க ஏன் குறைக்கல? ஒரு தரம் இல்ல 2 முறை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஏன் குறைக்கலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அமைச்சர் சொல்றாங்க பதில், நாங்க ஏதாவது டேட் சொன்னோமா? நாங்க சொன்னோம் அவ்வளவுதான். முதல கண்ணீர் வடிச்ச கதை இது. மத்திய அரசு குறைப்பாங்க, ஆனா நான் குறைக்க மாட்டேன். டேட் சொன்னேனா? மோரு 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது மோரு, அது மேல 5% டாக்ஸ் போட்டா அது 10 ரூபா 50 காசு ஆகணும். 12 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு விற்கிறீங்க. இன்னைக்கு அது எப்படி நியாயம்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல போட்டுக்கிட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு விற்கிறீங்க, பழி ஜிஎஸ்டி மேல. They are fully exempt from GST. ठीक है सर, मगर अरे भैया आप ठहरो ना, आपकी इतना क्या जल्दबाजी है? हमारे माननीय सदस्य कनिमोझी जी, एक यूपी से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पेंसिल का दर के ऊपर. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, पेंसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया. ओके सर, बच्ची ने लिखा है, ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको भरोसा है उन तक लेटर पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनको जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे. किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का मन में नहीं आया, वो भी हम ध्यान में रखना चाहिए. और ये बात मैं बोलना चाहिए जरूर. हाँ सॉरी, नो सर, मैं जरूर इसका जवाब तमिल में भी दूंगी, क्योंकि हाँ लगा लीजिए, क्योंकि सर बहुत ही पैशनेटली कनिमोझी जी बहुत विषय उठाया. बाकी वो जीएसटी पेन के ऊपर, पेंसिल शार्पनर के ऊपर, हॉस्पिटल बेड के ऊपर मैं आती हूँ. हाँ, क्रिमेटेरियम के ऊपर भी आती हूँ सर. नवंबर 3
நவம்பர் 3ஆம் தேதி 2021 பெட்ரோல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 5 ரூபாய் குறைச்சாரு மோடி ஐயா. டீசல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 10 ரூபாய் குறைச்சார். அதே மாதிரி மே 2021 அது நவம்பர் 2021 மே 2022 மத்திய அரசு திரும்பவும் பெட்ரோல் மேல இருக்கக்கூடிய வரி 9 ரூபாய் 50 பைசா குறைச்சாங்க. டீசல் மேல 7 ரூபாய் குறைச்சாங்க. அதே நாள் எல்பிஜி உஜ்வலா கஸ்டமர்ஸ்க்கு 200 ரூபாய் மானியம் கொடுக்கறதாவும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. सिर्फ एक हमारे तमिल आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग द ट्रांसलेशन हो रहा है ठीक. मगर सर தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் மேனிஃபெஸ்டோல 5 ரூபாய் பெட்ரோல்ல நாங்க குறைப்போம், எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு அரசமைச்சா 5 ரூபாய் குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டீசல்ல 4 ரூபாய் குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தவிர சார் ஐ எம் கண்டினியூயிங் சார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி Sir, I am not allowed to talk. I don't want interruptions. State government அதே மாதிரி 100 ரூபாய் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு சப்சிடி மானியம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. சார் கொஞ்சம் சோ 100 ரூபாய் மானியம் கொடுக்கறதாகவும் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. அதே சமயம் சார் இது ரெண்டும் நடந்துருச்சு. சார் I can't shout sir, I'm very weak. Sir, this is outrageous sir. அவங்க பேசும்போது நான் கேட்கணும், அவங்க பேசுற ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கணும். ஆனா பதில் கொடுக்க வந்த போது தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல. நான் கொடுக்கிற பதில கேட்டுதான் ஆகணும். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும். माननीय मंत्री जी एक मिनट if I'm like before I can talk shouting. I am not able to shout now sir. आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही. This is purposely trying to disrupt me because I'm telling the truth. If they have objection they should speak afterwards. Thank you. இன்னும் கேட்டு போங்க. Thank you. Sir, what is this sir? ये क्या है सर? सर क्योंकि तमिल में इतना स्पष्ट बोले कि हमारे सरकार बच्चे के पेंसिल के ऊपर, दूध के ऊपर
मैं जरूर इसको भी तमिल में कहना चाह रही हूं सर, चाहे वो इधर नहीं है बाहर जाके सुन ले, वो गलत बोलने वाले विषय उनके मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया उन्होंने वो नहीं किया, ऊपर से हमसे पूछ रहे। और ये भी एक दुख की विषय में बोलना चाह रही हूं, जब पत्रकार लोग जाकर के उनसे पूछे आपके मैनिफेस्टो में आपने बोला आप क्या कम नहीं किया, क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार 2 बार ये कर चुके हैं, आप क्यों नहीं किया, उस समय எங்க மத்திய அரசு குறைச்சிட்டாங்க வரிய, நீங்க ஏன் குறைக்கல, ஒரு தரம் இல்ல 2 முறை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஏன் குறைக்கலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அமைச்சர் சொல்றாங்க பதில், நாங்க ஏதாவது டேட் சொன்னோமா, நாங்க சொன்னோம் அவ்வளவுதான், क्या हमने कुछ डेट दिया है क्या, we said it, that's all, तारीख नहीं बोला ना जब कट करेंगे। अरे मैनिफेस्टो में बोला केंद्र सरकार 2 बार काटा, आपने कम नहीं कर रही हो, और जब आप पूछ रहे मीडिया आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमने डेट थोड़ी ना दिए, करेंगे, ये जवाब है सर। और वो लोग बोल रहे हैं मुझे एरोगेंट, आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू कॉल मी एरोगेंट, मगर जवाब जनता के लिए जो आज मैं बोलने वाली थी क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर शायद वो ऑब्जेक्शनेबल लिस्ट में पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री में निकाला गया, मगर वही हो रही है। முதல கண்ணீர் வடிச்ச கதை இது, மத்திய அரசு குறைப்பாங்க ஆனா நான் குறைக்க மாட்டேன், டேட் சொன்னேனா, ஓகே சார்। और दूसरा सर ये भी वो लोग बोले, और वो भी उनके हाउस में भी बोले कि डीजल का तो हम करने के लिए बोले मगर हम कर नहीं सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितने लोग डीजल उपयोग कर रहे हैं नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो वायदा दिया कम करने के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास नंबर नहीं है। सो आखिर कुछ भी कटौती नहीं हुई, केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार कटौती होने के बाद भी वो कम नहीं किए, और आज खड़े होकर के हमसे बार बार पूछ रहे कि पेट्रोल डीजल एलपीजी को भी सब्सिडी देने के लिए बोले कि हम नहीं देंगे। சோ மத்திய அரசு மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க வாக்குறுதியை ஏன் நிறைவேற்றலன்றதை எடுத்து சொல்லணும்। 2 முறை நாங்க குறைச்ச பிறகு கூட நீங்க குறைக்கல। और इवन वर्स आज पाल वेला कुறைஞ்சு जास्ती பண்ணிட்டீங்க, दूध के ऊपर आपने डाल दिया जीएसटी, कहने वाले तमिल डीएमके के नेतागण को मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए हमने क्लियरली बोले ब्रांडेड दूध के ऊपर लगेगा, लूज में दूध खरीदो कुछ जीएसटी नहीं है, और केंद्र सरकार को इतना टिप्पणी करने वाले डीएमके सरकार क्या किया है सर? वो ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर मैं बोल रही हूं, लूज के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये लीजिए, मान लीजिए 1 केजी का दही खरीदना है, डीएमको को बताना है तो उनकी भाषा में बता। हाँ, மத்திய அரசு மேல இவ்வளவு கோமா ஜிஎஸ்டி போட்டுட்டீங்கன்னு சொல்ற டிஎம்கே, பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல தான் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், அது மத்திய அரசு போடல, மோடி ஐயா போடல, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உங்க மந்திரியும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் நிர்ணயம் ஆச்சு, அதுல 5% தான் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல வரி போடணும்। இன்னைக்கு பப்ளிக்கா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்க ஐட்டம் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன், 1 கேஜி தயிர் வாங்கினா 100 ரூபாய் பழைய ரேட்டு, அதுக்கு மேல 5% டாக்ஸ் போட்ட பிறகு அது 105 ரூபாய் ஆகணும்। ஆனா நீங்க என்ன விலைக்கு விக்கிறீங்க? 120। 5% ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் போட சொல்லிச்சு, ஆனா நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்க? 1। ரெண்டாவது லஸ்ஸி, அதாவது இனிப்பா இருக்கக்கூடிய மோர் 27 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது பழைய ரேட்டு, 5% ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் போட்ட பிறகு பிராண்டட் ஐட்டம் போட்ட பிறகு அது 28 ரூபாய் 35 காசா இருக்கணும், ஆனா நீங்க 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க।
ஜிஎஸ்டி மேல பழி போட்டுட்டு நீங்க ஹையர் ரேட்ட போடுறீங்க, மக்களுக்கு பாரம் சுமத்துறீங்க. அதே மாதிரி பட்டர் மில்க், மோரு, அதே மாதிரி மோரு 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது மோரு, அது மேல 5% டாக்ஸ் போட்டா அது 10 ரூபா 50 காசு ஆகணும். 12 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு விற்கிறீங்க. இன்னைக்கு அது எப்படி நியாயம்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல போட்டுக்கிட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு விற்கிறீங்க, பழி ஜிஎஸ்டி மேல. ஆனா ஜிஎஸ்டினா மத்திய அரசுன்னு சொல்றீங்க. மத்திய அரசு இல்ல, உங்க அமைச்சரும் தான் உட்கார்ந்து இருந்தாரு அதே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல. ஏகமானதாக எல்லாரும் சேர்ந்து யுனானிமஸா எடுத்த டிசிஷன். இதுல புதுசா ஏழைகளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல சார். சோ ஒவ்வொரு ஐட்டம்லயும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 5% போடுங்க பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலனா, நீங்க 5%க்கு மேல போட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல பழி சொல்றீங்க. இது தப்பு. Sir, now I come to the general issues of GST. I want to tell you the recent decision taken in the GST Council on milk or any other item have all been discussed by the GST Council in full detail. I just want to highlight the fact that any GST Council decision is a decision of the GST Council in which all the ministers are present. 2/3 उनका वोटिंग होता है, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का. वोटिंग नहीं हुआ, कंसेंसस में डिसीजन हुआ. मैं सिर्फ ये बात रखना चाह रही हूं कि इसको एंटी, हाँ, राज्य वित्त मंत्री गण बैठते हैं. सो इसको एंटी पुअर बोलने वाले 1 मिनट में आई वांट टू एक्सप्लेन दैट. लेवी is only on pre-packaged items, labeled goods, and not on loosely sold items. So poor people के ऊपर कुछ इसका असर नहीं है. Similarly, 25 kg पैकेट के ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होलसेल व्यापारी से व्यापारी ले आकर के बिना टैक्स उनके किराना शॉप में रख के छोटे छोटे क्वांटिटीज में गरीब के लिए बिकने वाले कारण के लिए वो जब 25 kg लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है. होलसेलर को वो उधर से ले आकर के उनके दुकान में रखेंगे. इसीलिए 25 kg का पैकेट के ऊपर भी लूज में बिकने के लिए उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है. इसीलिए मैं ये बात जरूर कहना चाह रही हूं, लूज में दूध हो, चावल हो, पफ्ड राइस हो, बार्ली हो, ये सब के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है. गरीब को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया. सिर्फ पहले से पैक होकर के उसमें कुछ ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड ब्रांड है, इनके ऊपर ही टैक्स है. आप एक बोरी में ले आओ, बिको, उसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं. ये याद रखना चाहिए. There is no discrepancy and every minister has sat through it. I want to highlight, sir, I want to tell you sir, इस डिसीजन में हम कैसे पहुंचा. इसमें 3 लेवल पर डिस्कशन हुआ. फिटमेंट कमेटी में अधिकारीगण बैठते हैं, उसमें राजस्थान से भी अधिकारी है, वेस्ट बंगाल से भी अधिकारी है, तमिलनाडु से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से, ये सब अधिकारीगण बैठते हैं. उसके बाद ये लोग के इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार मिनिस्टर्स बैठते हैं. वो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर इसको ले आते हैं काउंसिल में. इसमें जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा इसके ऊपर भी है. उसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये सब भी भागीदारी. इतने लेयर के चर्चा के बाद
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद दूसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद निर्णय जब लेते हैं, इन सभी मंत्रीगण साथ बैठ करके एक भी आवाज ना नहीं बोले, सब माना कि ये करेक्शन करना चाहिए। ठीक है सर। सो टोटली एक भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। सुप्रिया जी इधर नहीं है अभी, वो बोले दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी। बोलो कौन इनकार किया, कौन क्या किया? कोई कुछ नहीं के, हर लेवल में हम बढ़ करके आया। इससे लीकेज कम करने के लिए हमने निर्णय किया, मगर लीकेज कम करने के बहाने में गरीब के ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डाला। उनका पहले जैसे ही मिलेगा, सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर ही हमने टैक्स डाले। सर, ये क्रिमेटोरियम के ऊपर, स्मशान घाट के ऊपर बात बोलते हैं और व्यंग से ये भी बोलते हैं कि अगले शव के ऊपर डालोगे क्या टैक्स। मुझे दुख लगता है ऐसे बयानबाजी करने वाले के ऊपर। उनके मंत्रीगण भी इधर बैठे हुए हैं जीएसटी काउंसिल में। कोई, मैं सिर्फ बैठ करके निर्णय नहीं करती, और जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार के निर्णय नहीं है, जीएसटी काउंसिल के निर्णय है। और जब बात क्रिटिसिज्म करने के लिए चाहिए, वो लगा लो केंद्र सरकार और मोदी जी के ऊपर। जीएसटी में ऐसे कर दिया, जीएसटी में ऐसे कर दिया। जीएसटी काउंसिल में सभी प्रांतों का, राज्यों का मंत्रीगण बैठते हैं, सब इकट्ठा बैठ करके निर्णय लेते हैं। वो उनका निर्णय भी है, वो भी जा करके उनके स्टेट में बोलना है, मैं भी बैठा उसमें, मैं भी सहमत बरा इसमें। वो क्यों नहीं बोलते हैं? अंदर एक सहमत बरा दो और बाहर जाकर के केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो। ये गलत है। अंदर तो 3 लेवल में आपने हां भरवाया, आज आकर के ये बात ऐसे पलट रही हो जैसे कि मोदी जी ने निर्णय लिया। जीएसटी काउंसिल में आप सब बैठे हैं जी। इसीलिए ये गलतफहमियां 2 विषयों में जरूर समझती हूं मैं दूर करने का। क्रिमेटोरियम के ऊपर सर, देयर इज नो जीएसटी ऑन क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, बरियल और ऑन मॉर्चरी सर्विसेज। ये कोई इन आइटम्स के ऊपर, क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, बरियल, मॉर्चरी सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर भी वो डोल मोल करके वो डालेंगे और अगले शव के ऊपर भी डालोगे। अरे थोड़ा मन ऐसे बात करने में कैसे चलता है? दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है सर, मगर अरे भैया आप ठहरो ना, आपकी इतना क्या जल्दबाजी है?